और मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आगे चल के इनको ऐसे ही प्रोत्साहन दे दो कि आगे चल के कोई मिस इंडिया बन सके, इसलिए मैं शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू। आपका साथ चाहिए नरेश जी हर इवेंट पे, और मैं ज़रूर कहता हूँ कि बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। Perfect Style Icon is the award which I was supposed to get at the Perfect Achievers Award, and I missed it last time. Thank you so much, Gurubai Thakur and Khushi Thakur, for this beautiful memento. बचपन से trophies लेने की आदत हो गई थी, तो आज Style Icon लेके I'll go home. Thank you so much. I think style is something which is inbuilt. You can go to school, but you can't buy class. It's inbuilt. Thank you so much for this honor. A very big hand, ladies and gentlemen. Perfect Style given to Kainat Arora, fantastic actress. She has got a terrific screen presence, and I'm sure you're going to watch all her movies. For organizing such a prestigious event and making me part of this wonderful evening. I was always looking forward to come here because last year I missed Perfect Achievers Award, where I was awarded as the Perfect Style Icon, and today I got that award, and I'm absolutely grateful and thankful to Perfect Woman magazine, Gurubai Thakur and Khushi Thakur for having me on board. And tonight it is Perfect Mr. and Miss Teen awards happening. So it's even beautiful because newcomers and new talents and teenage students who want to come up in life, it's a huge opportunity for them to showcase their talent and participate in this wonderful contest. Because sometimes when we are young, we really don't know what to do out with our lives. So people who want to enter the entertainment field, the entertainment industry, it's a huge platform for them to participate, showcase their talent, and tonight it's the finale which is happening, and we're gonna be judging the grand finale round right now, because past few weeks the auditions were going on, and people across the country, the teenage students, the teenage kids, they participated. So for me it's a new thing because for the first time I'll be judging teenage kids, and it's going to be fun, entertainment, and I'm going to enjoy lots of fun inside. कायनात मैम अभी आपने कोई वर्ड आपने शेयर कर रही थी डिम्पल कपाड़िया को लेके आपने कुछ क्या I had done a song with Akshay Kumar, which was in Khatta Meetha, which was directed by Priyadarshan sir, and I did that song Aila Re Aila Ki Chamaila, and that was inspired by Bobby film Jhoot Bole Kawa Kaate. So I had done something similar to that. I was wearing a fisherwoman Kori Badi attire, and that was inspired by Dimple Ji, and it was a tribute to Dimple Ji which we gave. ओके, किसी ने आपको ये भी कहा था कि गाड़ी आ जाएगी, बंगले आ जाएंगे, क्या? Yeah, I mean, like when as a newcomer, as a beginner,
we always hope that we reach somewhere in life. So when I was beginning my career, I was told that I'll be successful enough where one day I'm gonna have a house of my own and I'm gonna do well in my life. So whatever people were talking about it, it's a huge big break which I'm getting, and it's gonna be a big thing. So I think Akshay Kumar proved out to be very lucky for me, and so did Priyadarshan sir, and I think it was a huge opportunity for me as a beginner. I come from a small town called Saharanpur in UP, so coming from that city, I never thought that one day I'm going to work with Akshay Kumar or I'm going to reach this far. But then again, I'm grateful to all these people. Because of them, I am what I am today. कनक तो अभी लास्ट नाइट में मिस इंडिया Yeah. हुआ, आपने देखा और क्या कुछ शेयर करना? Well, I couldn't watch it yesterday because I was attending another event last night. I had launched an app called Geo Guru, where I am judging Geo Mr. and Miss Queen contest again. So King and Queen contest. So I was really like busy last night, so I couldn't watch the contest because I was part of some other event last night. कनक और क्या कुछ पाइपलाइन में है, कुछ शेयर करना चाहिए? Yeah, just finished a web series called The Birthday Gift, and it's a psychotic thriller, so I'm looking forward to that this year. Apart from that, I have just finished a comedy film called Kitty Party, which is a Punjabi film with Nav Bajwa who's directing it, and Jaswinder Bhalla, Gurpreet Kogi, Upasna Singh, a lot of good cast is there. I'm looking forward to that this year, and apart from that, I'm already shooting for Khali Bali, which is a horror comedy, and it's a Hindi film. Madhu is there, Dharmendra Ji is there, Vijay Raj, good star cast, Rajneesh Duggal is there. So it's a horror comedy. For the first time I'm doing something like this because I've done a comedy. I've never thought of doing a horror comedy that soon. And it's been directed by Manoj Sharma, so I'm looking forward to that release this year. So back to that. किस प्रकार का खली बली में किस प्रकार का किरदार कुछ शेयर करना चाहिए? I'm playing the role of Sanjana, and it's a psychotic character kind of a thing because it's a horror comedy. So the entire Khali Bali is revolving around Sanjana. सब कुछ उसी को solve करने में लगे हैं. And I was always a huge fan of horror genre, but then I never thought that horror with the comedy will do. So it's a situational stuff, like you've seen Bhool Bhulaiya, we all have seen Stree, so something like that. But I can't reveal the story exactly because that's something we're not supposed to talk about. राजपाल के साथ कैसा केमिस्ट्री? Rajpal is nice. All of them, Vijay Raj and Asrani ji, Dharmendra ji, Madhu, like after such a long time, she's coming back. She's beautiful in Rosa. And I was a child when I saw Phool Aur Kaante, and Rajneesh is great to work with. All of them. I think the entire star cast, even the director, Manoj sir, is awesome to work with. So much to learn from everyone. Sure, thank you. Thank you so much. We hardly see you anywhere. Yeah, because I'm more in my own space. Being a TV actor, आपको पता है कि busy रहते हैं, ज़्यादातर शूट चलते रहता है. बहुत मुश्किल से आज भी निकले वहाँ से. And I think it's important ऐसे events पे जाना because खुद की भी बेटी है जो 16 साल की है और I love watching children perform क्योंकि ऐसा लगता है कि my God, पावर हाउस ऑफ टैलेंट है ये सब जो टीनेजर्स हैं इनके अंदर कितना टैलेंट है. खास करके आज का जो हमने वो परफॉर्मेंस देखा था बी-बॉइंग एंड हिप हॉप एंड ऑल दीज थिंग्स अमेजिंग. मेरी खुद की डॉटर भी बहुत अच्छा हिप हॉप करती है. सो एंड परफेक्ट वुमन, यस, व्हाट इज़ अ परफेक्ट वुमन? आई थिंक परफेक्ट वुमन वो है जो सब चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करती है. तो अपने करियर को, अपने लाइफ को, वर्क को, आई थिंक वी आर ऑल बिकम इन दैट कैटेगरी. So we all relate to these kind of events. Do you get nostalgic, when we talk about children, the way children are performing in the current scenario, in the current date, Yes, I do. Why? Because मेरी शुरुआत हुई थी 9 साल की एज में. मैंने एक फिल्म वीराना से शुरू की थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी. I was 9 years at that time. मैंने एक हीरोइन के बचपन का रोल किया था उसमें और फिर उसके बाद मेरी एज ए लीड शुरुआत हुई थी जब मैं 16 साल की थी. Even that's again you're a kid, almost a kid only. तो मैं बहुत नॉस्टैल्जिक इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मुझे आई रिमेंबर कि मैंने भी ऐसे ही शुरुआत की थी, इसी एज में शुरुआत की थी. मेरे क्या स्ट्रगल्स थे, मेरे क्या नर्वसनेस थी, इनहिबिशंस थे. लेकिन आजकल के बच्चे बहुत डिफरेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. अच्छी बात है, काश हम ऐसे होते तो शायद हम कहीं और होते.
what's there in your plan where your daughter want to be did she want to be a part of Bollywood? You cannot. The kids today are very, very focused. They know what they want in their life. हम अपने बच्चों पर कुछ भी नहीं थोप सकते और मैं नहीं थोपना चाहती. I just don't want my kid to do what I want her to do. I want her to do what she wants to do. वो एक फुटबॉल प्लेयर है. वो किंकरे के लिए प्रोफेशनली प्ले करती है. She signed up for a team called किंकरे. और वो फुटबॉल को बहुत पैशनेटली फॉलो करती है और शी लव्स फुटबॉल एंड हम उसे पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में. मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब उसने शुरुआत की थी शी वॉज जस्ट 8 years old और तब फुटबॉल का नामो निशान नहीं था लड़कियों के लिए अपने इंडिया में. लेकिन धीरे धीरे हमने देखा जैसे उसकी इच्छा वो पैशनेट रही, बोली नहीं है तो मैं कहीं और जाके करूँगी फुटबॉल. और आज की डेट में फुटबॉल इंडिया में भी इतना ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है फुटबॉल को. फुटबॉल भी ग्रोथ कर रहा है. तो बच्चों को उनके ड्रीम्स फॉलो करने दो. आप उनके साइड में हो सकते हो, अपनी गाइड कर सकते हो और उन्हें पुश दे सकते हो. लेट देम डू व्हाट दे वांट. तो जस्ट बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ, मेरी बेटी एक्ट्रेस बने ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं. Thank you, ma'am. इतना ये कि सब छोटे बच्चे हैं 13 years to 17 years. इट्स परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन से लिया. इट्स ए पेजेंट फॉर टीनेजर्स जो अभी नए स्कूल से निकले. दे डोंट इवन इतना भी उनको एक्सपीरियंस नहीं है कि कहीं खुल के बात कर सके. बट वी हैव सीन ईयर लास्ट ईयर के जो विनर्स आए थे एंड दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. सो दिस इज व्हाट इज द अचीवमेंट. तो हम बेसिकली कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ये इवेंट कर रहे हैं. मैं क्या कहना चाहिए और ये किसका इनिशिएटिव या आइडिया था? हमने आपके माध्यम से बहुत कुछ देखा है. जब हम परफेक्ट वुमेन की बात करते हैं उससे रिलेटेड जितने भी इवेंट अब तक आपने कराए अभी टीनेजर बच्चों को लेकर मैं ये बहुत आइडिया हो. लास्ट ईयर भी हमने यही शो किया था एंड इट वाज सीजन 1. नाउ दिस इज सीजन 2. टीनेज के ऊपर कोई भी इवेंट्स नहीं होते, कोई भी शोज़ नहीं होते, ना उनको कोई प्रोत्साहन दिया जाता है. तो वी केम आउट विद एन आइडिया दैट लेट्स स्टार्ट विद टीनेजर्स. तो ये हमारा सेकंड सीज़न है और बहुत सक्सेसफुल है. एंड कायनात जी इसमें जज बन के आई हुई है और उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसा उनको महसूस हुआ नए टीनेजर्स को. First of all, I want to thank Perfect Woman magazine for having me on board. Kushi Thakkar, Gurbai Thakkar, thank you so much for having me here. I missed Perfect Achievers Award some time back and I got Style Icon Award, so I got that tonight. So I'm privileged and honored to be part of such a beautiful setup. This is my first time where I am part of something where teenage kids have participated in a contest, in a pageant, and I'm judging that as a jury. It's very easy to judge people, especially kids. It becomes more difficult, but then when you're on the platform where you're participating, it becomes really difficult. And these kids, they have participated from all over the country. So it's a huge platform for all the kids where they are participating and they are showcasing their talent and they want to reach somewhere in life. Sometimes we want to become big in life, but we don't get the platform. I think Perfect Teenage Mr. and Miss Teen contest is the perfect platform for all the kids where they can showcase their talents and decide what they want to do in life. I didn't get that opportunity as a child. These kids are getting the opportunity and they are they have come up with a cause. They're talking about drugs. It has become such a big issue. तो उस कॉज को लेकर कितने अच्छे मुद्दों को ये लोग प्रोवोक कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दे आर एसोसिएटेड विद गुड कॉज. या टीनेज शुड गेट इन्फ्लुएंस विद सच थिंग्स एंड ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए. सो परफेक्ट वुमन मैगजीन हैज़ कम अप विद दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और ऐसे ब्यूटीफुल प्रोग्राम्स आप करते रहिए हर साल और ऐसे कॉजेज़ को मैं सपोर्ट करती रहूँ. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ इट. थैंक यू सो मच. ये जो पूरा इनिशिएटिव लिया है ड्रग्स को लेकर खास करके बच्चों को बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं, बच्चे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. क्या ध्यान में रखा है और क्या जैसे अब कायनात ने बहुत कुछ बताया, क्या इस पूरे शो के दौरान ड्रिंकिंग भी की गई है क्या? जी, अभी आप एक एक्ट भी देखेंगे जिसमें हमने ड्रग्स को लेकर ड्रग एब्यूज़ के लिए से नो टू ड्रग्स पर एक हम लोगों ने कैंपेन के लिए एक्ट बनाया है विच इज़ गोइंग टू बी परफॉर्मिंग हियर, जिसमें चाइल्ड आर्टिस्ट लोग परफॉर्म कर रहे हैं ताकि सबको पता चले. बिकॉज बच्चे आजकल छोटे टीनेजर्स यू कैन से दे गेट इन्फ्लुएंस वेरी फास्ट. ज़्यादा करके पेरेंट्स को इतना वक्त नहीं दे पाते और वो फ्रेंड्स के साथ में इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है. तो बेसिक यही था कॉन्सेप्ट कि पेरेंट्स शुड बी क्लियर विद द किड्स. टीनेजर्स को टीनेजर्स ना समझ के उनको दोस्त समझ के उनसे बात करें ताकि उनकी जो मन में क्लैरिटी है वो किसी और से उसके ओपिनियन लेने ना जाए. बिकॉज टीनेजर्स सबसे पहले इन्फ्लुएंस इसलिए होते हैं बिकॉज उनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो उनको गाइडलाइन देते हैं.
And tonight what I'm seeing, even the kids, their parents have also participated on the ramp. This is for the first time where I'm seeing that the parents are also walking the ramp, and they are motivating their kids to do something good in life and say no to drugs, as we all are promoting. So Perfect Woman magazine has come up with this wonderful thing, and I'm absolutely honored that I'm also part of this whole concept. से नो टू ड्रग्स का मेन रीज़न ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनके दोस्तों की काफ़ी उनको बिगाड़ देता है, लाइक उनको गुंडा कर देते हैं, उनको इन्फ्लुएंस इस तरीके से करते हैं कि भाई तेरा तो कोई नहीं है ड्रग्स के सिवाय, यू टेक ड्रग्स। तो वहाँ से जो ड्रग्स की शुरुआत होती है तो फिर खात्मा कहीं नहीं होता है। तो वी ट्राई टू पुट दैट एज एन एक्ट कि लोगों को पता चले कि दिस इज़ रियली नॉट गुड, इट्स बैड, से नो टू ड्रग्स। ये जो टीन एज है, ये ऐसी एज है जहाँ बच्चों को लगता है दे आर ऑलवेज राइट, उनके पेरेंट्स गलत ही। बिकॉज अगर उनको पेरेंट्स कुछ उनको डांटेंगे तो फॉर देम इट्स लाइक देन द फ्रेंड्स विल इन्फ्लुएंस, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमको डांटे। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने किया जहाँ पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एक बॉन्डिंग है, उसको हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं ताकि उनको सबको पता चले। थैंक यू। मैं इनको कुडोस देना चाहती हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। दे वेरी सिंपल पीपल, आई कैन सी कि इनका दिल बहुत ही बच्चों को लेकर और उनके इश्यूज़ को लेकर बहुत ही इमोशनल है, एंड दे आर वेरी दिस अबाउट इट। जैसे आपने कहा कि ड्रग्स के ऊपर आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि इसकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है। एक समय था बीच में जब बहुत ठंडा हो गया था, फिर से मामला उठ रहा है। ड्रग्स इज बिकम सो प्रिवलेंट। मेरे घर के नीचे एक गली है, एंड इट्स लाइक यू कैन इमेजिन हाई फाई प्लेस लाइक लोखंडवाला एंड वहाँ पर ये चीज़ें चलती है। और बच्चों को, मेरी डॉटर ने मुझे खुद कहा कि उसने वन ऑफ फ्रेंड्स को देखा कि ही वॉज टेकिंग एनी आस्क्ड हर कि तुम ट्राई करना चाहती हो। और मेरी डॉटर को मैंने बचपन से ही बहुत इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आई हैव थॉट हर, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग दी है। सो शी सेड नो। बट कितने बच्चे ऐसा कह पाते हैं और कर पाते हैं? तो ऐसी इनिशिएटिव्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इस चीज़ों पर अवेयरनेस लेकर आए और इन चीज़ों को रोक सके, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे अफेक्ट ना हो और हमारे बच्चे, उनकी लाइफ बर्बाद ना हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं इनके साथ हूँ इस चीज़ में। एंड आई रियली विश कि आप लोग ये जो इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत सक्सेसफुल हो, ये इंडिया के कोने कोने तक जाए और इस चीज़ पर ज़रूर रोक आनी चाहिए और जल्द से जल्द आनी चाहिए। आजकल की स्टडीज़ में भी बच्चे लोगों को इतना प्रेशर दिया जाता है कि वो प्रेशर निकालने के लिए कहाँ जाए, किससे बात करें, क्योंकि माँ बाप तो वक्त नहीं दे पाते। तो दे गो विद फ्रेंड्स, दे लिंगर अराउंड विद फ्रेंड्स, एंड उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं उनको बोलते कभी स्मोक कर लो तो थोड़ा हल्का हो जाए, कभी पी लो, कभी ड्रग्स दे देते, कभी कोई गोलियाँ दे देते। आजकल तो ऐसी ऐसी गोलियों का नाम है जो हमने कभी सुने भी नहीं है। एंड दे गेट इन्फ्लुएंस। और अगर पेरेंट्स उतना उनको सपोर्ट करते हैं, ध्यान दे सकते हैं, तो
ये चीज़ों से बच सकते हैं, या वो अपने माँ बाप को जाके खुल के बताए कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये बताया, ये दिया, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी बेटी ने जाके बताया इनको कि इनके फ्रेंड्स ने ऑफर किया। दैट इज द मदर डॉटर पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन होना बहुत जरूरी है, राइट। बट गुरु भाई जी, यू नो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि फैमिलीज जहाँ पर बच्चों को कोई तकलीफ ही नहीं है, अच्छे हंसती खेलती फैमिलीज में भी ये चीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर और गलत संगत का असर होता है। तो हमें एक्चुअली अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे खुश हैं और नॉर्मल हैं, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है उनके साथ। और ये भी है कि टेक्नोलॉजी ने भी उनको बहुत सब चीज़ों से बहुत दूर कर रखा हुआ है। ये एक्टिविटीज़ एक तरीके का एक मीडियम है जहाँ हम बच्चों को इन्वॉल्व कर सके। अदरवाइज यू सी ऑल द टीनेजर्स इन द मोबाइल डूइंग व्हाट्सएप, ड्रग्स से ड्रग्स से बढ़कर अगर कोई खतरनाक चीज़ है वो है मोबाइल। वेरी ट्रू। तो बिगेस्ट एडिक्शन राइट नाउ हम सबके लिए है। हाँ, बिगेस्ट है। और इस शो के जरिए परफेक्ट मिस एंड मिस्टर टीन्स इंडिया के जरिए हम उन बच्चों को थोड़े एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं जहाँ दे आर फिजिकली डूइंग सम एक्टिविटीज़, देयर टैलेंट हैज़ बीन शोकेस, दे आर वर्किंग ऑन देयर टैलेंट, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रोवाइज देयर ओल्ड स्किल्स। तो ये एक तरीके का और खुशी जी, आई एम अ मदर ऑफ अ 16-year-old और मैं ये जानती हूँ कि इन लोग के लिए इस वक्त कितना इम्पोर्टेंट है इस एज में 14, 15, 16 में उनको बढ़ावा देना, उत्साहित करना और उनके व्हाट यू कॉल सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ाना, बिकॉज सेल्फ स्टीम इज़ अ वेरी बिग इशू विद टीनेजर्स। अगर उनको आप नहीं उनका बढ़ावा दोगे उनकी सेल्फ स्टीम को तो वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विद टीनेजर्स। For teenagers nowadays, of course, these days depression is the biggest thing जो teenagers को बहुत जल्दी, because parents भी उनके साथ इतने connected नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टेक्नोलॉजी के में फिर हम डांटते हैं तो डांट की वजह से they feel like my parents are unnecessarily getting obsessed about us. So the news is we are collaborating very soon on a song and with more people, not only us but more. So she's a brand ambassador for this Perfect Woman Private Limited. So I guess she's the perfect choice and she's a lovely person in person. Like जब से मिली हूँ she has such a infectious smile she has. मैं थोड़ी देर पहले इनसे मिली थी, हम घर पे गए थे इनसे, बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके एंड हमने बहुत मस्ती की थी, बहुत बातें की थी, गाने की बातें की थी एंड आज हम फिर मिल गए। इनको पता ही नहीं मैं भी आ गई हूँ तो ये खुश हो गए, जाने वाले थे। सच बहुत अच्छा लगा। तो बहुत मज़ा आ रहा है, इवेंट में भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के लोग हैं, काफ़ी तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं। कोई मम्मी के साथ आए, कोई पापा के साथ आए, कोई बहन के साथ आए एंड कई लोग तो मम्मियाँ लग भी नहीं रहे, सिस्टर्स लग रहे हैं। सो दैट इज़ अ न्यू थिंग। बहुत मतलब बच्चे आए हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अलग अलग टैलेंट दिखा रहे हैं अपना, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके सबके टैलेंट देख के। It's very good initiative because एक तो आप you are guiding some people who are क्या कहना चाहिए कि वो भटक गए अपने पाथ से, so you are just getting them on the correct lane first of all and secondly you are giving a target to people to live on. क्या होता है हम भटकते तब हैं जब हमारे पास कोई टारगेट नहीं होता लाइफ में, so I think this perfect is giving them a perfect target to chase on, so that is really हाँ great and मतलब वी शुड इंकरेज देम मोर और इनकी तरीके के और भी लोगों को इंकरेज ज़्यादा करना चाहिए हमारी सोसाइटी को, बिकॉज ये बहुत ही मुश्किल काम है। नॉट बिकॉज कि ये काम मुश्किल है, बिकॉज किसी को भी समय देना सबसे ज़्यादा मुश्किल है आज की डेट में, व्हाट आई फील पर्सनली। और वो इस काम को इतनी डेडिकेशन के साथ इतना अच्छे से अपना समय अपना वक्त दे रहे हैं। हम तो आज के लिए आए बट पता नहीं कितने महीनों की ये या कितने सालों की ये मेहनत होगी जो वो पुटअप कर रहे हैं। सो दैट इज़ रियली 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 thumbs up to them and my best wishes always for them. कभी नहीं। क्यों ऐसा क्यों? यार it's really tough, really नहीं, tough. अगर हमें खुद पे भरोसा है कि हम कर सकते हैं तो आप भी आपको है ना? I know.
मुझे पहले लगता था कि सिंगिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब, और सच में कि हवा में आपको सुर पकड़ के और लगाने पड़ते हैं, दैट इज़ टफ वन। बट उससे भी ज़्यादा फिर मुझे लगता था कि साधु लोगों की तपस्या बहुत ज़्यादा टफ है, बट आई थिंक एक्टिंग इज़ द टफेस्ट जॉब। आपको अच्छा दिखना होता है, अच्छा रहना होता है, एक्सरसाइज करना होता है, एंड आफ्टर ऑल दैट इतनी मेहनत के बाद कैमरे के आगे आपको एक्सप्रेस करना होता है कोई चीज़, दैट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। मैं आई एम लाइक माई ओन जोन। ऐसे कहा दूंगी आपको। बिग बॉस आने वाला है, यू शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड विद सलमान। Yeah. Is there a possibility will ask you to be a part of Big Boss? Would you be interested? नहीं, बहुत टफ है यार, उतना ज़्यादा कैमरा से इतना ही फेस कर लेती हूँ मैं, यही मेरे लिए एक अचीवमेंट है इतने सालों में, बट इट्स रियली टफ फॉर मी टू फेस इट, बट आई एंजॉय दैट। येस, आई डू एंजॉय दैट, एंड बिकॉज ऑफ सलमान सर आई एंजॉय इट मोर। वो इतना मज़ेदार बना देते हैं बिग बॉस को, या वो बहुत मज़ेदार बनाते हैं। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। थैंक यू सो मच। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो, मुझे 11 ईयर्स हो गए काम करते हुए इस इंडस्ट्री में, एंड बहुत अच्छा लगता है सबके साथ काम करने में। टाइम से इतने सारे लोग मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड गीत मैम एंड खुशी मैम बहुत ही अच्छे हैं, इतना सब कर रहे हैं, और बच्चों के लिए जो इतने टैलेंटेड है उनके लिए फैशन शो में जो परफेक्ट मिस इंडिया है उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो बाकियों के लिए, इतनी हेल्प कर रहे हो सबकी, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। Yeah, she is a celebrity. How life changed for becoming a brand ambassador? Like, please talk about children, बच्चे की बात करी जाती है, लड़कियों की बात करी जाती है, बहुत प्राउड महसूस करती हूँ अपनी मम्मा पे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत प्राउड महसूस करती हूँ, बिकॉज उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, एंड उनकी वजह से आज यहाँ, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड खुशी मैम को, एंड गुरु सर को, एंड गीत मैम को थैंक यू कहना चाहूँगी। ये पहले से ही बहुत दिल के करीब रही है हमारे, बिकॉज शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द परफेक्ट वुमन कंपनी फॉर पास्ट 2 to 3 years, and this time it happened so that this star was ready and available for being a brand ambassador. So इनके पेरेंट्स से बात की, मम्मा से बात की, and they were like privileged, they have taken the privilege, yes of course, and they are here today. Is there a possibility on a very positive note? I hope you take it on a positive note. We'll see somebody along with a female from the Bollywood becoming a brand ambassador of your company. Yes, of course, that is for sure, because teenagers थे, the pageant is all about teens, तो teens के लिए targeted, और वैसे भी they get influenced, जैसे कि हमने कहा, इनके followers ही वही है, सभी teens, इनका नाम आने के बाद we are getting messages, is she going to come, is she going to click pictures with us, because बच्चे आजकल influence teens हैं, तो she can be a role model for those teenagers who are a part of the organization, उसके अलावा भी जो इनको follow up कर रहे हैं और जो आजकल पूरे रास्ते चल रहे हैं, तो ये हर किसी के लिए एक बहुत रोल मॉडल है।